क्यों खुद को सता रहे हो? जानती हूँ थक गए हो, पर जिंदगी को क्यों दोषी बता रहे हो? सुनो, गलत नहीं है अलग होना, तुम सही रास्ते जा रहे हो। बस खुद को तुम अभी कोई गालिब या शेख नहीं बता पा रहे हो कि मान लो ना अलग हो, क्यों खुद को सता रहे हो? जानती हूँ थक गए हो, पर जिंदगी को क्यों दोषी बता रहे हो? Warm greetings and welcome to the platform of Man Mahila Ka. Today we have our marvelous Mahila Prerna Avasthi, adorned with various awards for your notable contributions. Ma'am, please tell us more about your journey, as in how you started your career as a social influencer and an environmentalist. In simple words, if I describe my journey, I have talked about everything that bothered me. I have talked about the most uncomfortable things that people don't talk about, be it menstrual hygiene, be it mental health. So, from a very very tender age, I decided that I'm going to take the initiative. And being a youth, we should all talk about certain things that are not talked about enough. So, in simple words, if I say, I have talked about all the uncomfortable things, but the things that matter. And I've taken up all those things and I did whatever I could out of it. So, yeah. Perfect. To know about you more, we know that you are a poet and artist. So please tell us more about your work profile and your poems. Of course, you would like to know them as well. Most of the people do love poetry. Like, अगर आप majority देखेंगे तो ज़्यादातर लोग love poetry करते हैं. But I was a social activist, तो मैंने सोचा I'll do poetry of impact. So I usually talk about social issues via poetry. तो कुछ लाइनें बोलूंगी और शायद मेरी वो लाइनें मेरी इस बात को समझा दें. तो मैंने आवाम औरतों को बोलती है कि आप कम बोला करो. तो मैंने आवाम को जवाब देते हुए कुछ पंक्तियां लिखी थी. तो वो पंक्तियां कुछ ऐसी थी कि कहने दे मुझे ए आवाम, मैं यूं ही नहीं शोर मचाती. कहने दे मुझे ए आवाम, मैं यूं ही नहीं शोर मचाती. नहीं जानता है तू दरिंदगी की चुप्पी में कितनी चोट हूं खाती. मुझे और नहीं है सहना चुप रहकर, मुझे और नहीं है सहना चुप रहकर. अब तो कहने दे मुझे ए आवाम, मैं यूं ही नहीं शोर मचाती. दफ्तर से लेकर घर तक, दफ्तर से लेकर घर तक कुचली गई हूं मैं ए आवाम, मैं यूं ही नहीं शोर मचाती. स्वतंत्रता से अब तो जीने दे मुझे ए आवाम, मैं यूं ही नहीं शोर मचाती. So I just write something which is impactful and which is, I do poetry of impact. So I wrote this poetry answering the people who say कि तुम्हारे औरतों के बहुत opinions होते हैं. मैंने उनके लिए ये कुछ चंद पंक्तियां लिखी थी. So yeah, that's how I started. Wow. And first of all, I would like to congratulate you because your poetry was wonderful. Moving ahead, yeah, we know that you are also speaking upon certain issues related to menstrual hygiene. So we would like to know more about that, as in what was your inspiration for that? Because women, Right. it's a neglected topic, and people do not talk about it. Yeah, most of the women actually feel awkward about it. So how did you just went into that, and what was your inspiration? तो 10 में से 9 अगर आप आज 9 लोगों की रिपोर्ट देखें, उनको पीसीओडी होता है. ठीक है, दे सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी, दे सफरिंग फ्रॉम पीसीओएस. तो अब मेंस्ट्रुअल हाइजीन एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मुझे समझ नहीं आता हम बात क्यों नहीं करते. वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें ना कुछ अनकंफर्टेबल टॉपिक्स, पहली चीज तो वो अनकंफर्टेबल टॉपिक नहीं है. मेरे को खुद को ऐसा लगता है कि हर वो चीज जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसके बारे में बात होनी चाहिए. और बहुत सारे चैलेंजेस जो आज की डेट में, consequences जो हम फेस कर रहे हैं, a lot of things. We talk about child sexual abuse, we talk about so many things. If at a very mild, when somebody has just started suffering from that, or if somebody is experiencing that,
छोटी एज में ही हम उन्हें अवेयर करना शुरू कर दें, हम उन्हें बताएं that this is normal and we talk about menstrual hygiene. It is so important. What if I tell you कि एक हेल्दी बेबी नहीं होगा अगर आप मेंस्ट्रुअल हाइजीन ना फॉलो करें? कितने सोचने वाली बात है कि हम उस चीज को निग्लेक्ट कर रहे हैं. People are using anything. They're using anything. Like women are not aware कि उनको क्या यूज करना है. वो अपनी बॉडी के बारे में बात करने में इतना हेजिटेट करती है. मैं आपको बताऊं, जब हमने कैंपेन शुरू करी थी ना, तो कुछ लोग क्या करते थे, दे यूज्ड टू कम, ऑल द women used to come. हम बोलते थे कि मेन भी आ सकते हैं, पर मेन आते ही नहीं थे. women आने में इतना हेजिटेंट थी, तो वो आती थी और थोड़ी देर में हमें इतना बुरा लगता था, सब उठ के धीरे धीरे जाने लग गए. और मुझे ऐसा एक टाइम पे लगा कि इज इट इवन वर्थ, लाइक वट एवर आई एम डूइंग, क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या मैं ये कर पाऊंगी? लेकिन जब मैंने करा ना, मुझे ऐसा लगा कि यू नो इट्स लाइक हेल्दी लाइफ जो है ना, हम जिसको गिफ्ट कर सके हमें करनी चाहिए. इन सारी चीजों के बारे में हमें बात करनी चाहिए. मेंस्ट्रुअल हाइजीन कोई शर्म की बात नहीं है. इट इज अबाउट somebody's body. It is about your body for that matter. You know, if we want the future generations to be healthy, if we are so concerned about, you know, लोग कहते हैं कि अगर हम बारिश की इतनी बात कर रहे हैं, या अगर हम यंगस्टर्स की इतनी बात कर रहे हैं, मेंस्ट्रुअल हाइजीन की हम कैसे नहीं कर रहे हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड. So I started for like talking about menstrual hygiene. I went for it and I did certain campaigns and I awared people, because मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक बार अवेयर हो जाए, अगर मैं किसी को बता दूं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो खुद ब खुद चीजें बदल सकती हैं. तो छोटा छोटा मेरे से जितना भी हुआ, ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कर पाई बहुत बड़े लेवल पे, पर छोटे छोटे कैंपेन्स मैंने करे. और उसके बाद में हमने बात करा, अवेयर करा, सेशंस लिए. We taught them how to use, and the most important thing, how to throw it, because of course somebody who's picking it is also a human and can also catch diseases. So this was how I started about menstrual hygiene. Wow. And what is the social change that you see in the society for the next few years? What do you want? का तो मेरे को, if I could change something, तो सबसे पहले climate crisis पे मैं काम करती, जिस पे मैं अभी काम कर भी रही हूँ. I am running a project in that. तो मेरे हिसाब से आप बाकी सारी चीजें तो साइड में रख दो कि हम डेवलपमेंट कैसे करेंगे, हम स्मार्ट सिटी कैसे बनाएंगे. We should talk and discuss about environment first. दिल्ली में अभी विंटर्स आई नहीं है. मैं कैपिटल में रहती हूँ, दिल्ली में अभी विंटर्स नहीं आए हैं, और रेड अलर्ट, लाइक वी आर ऑलरेडी इन द रेड जोन्स. ठीक है, हमें ऑलरेडी ऐसी सिचुएशन में हम आ गए हैं. आर वी गोइंग टू लिव अ हेल्दी लाइफ विदाउट हेल्दी एयर एंड विदाउट नेचर? Can we really work on our success and development of the country without having, respected nature? कोरोना चल रहा है, और अब तो मेरे हिसाब से कोरोना has happened because we haven't respected nature enough. मुझे ऐसा लगता है कि नेचर ने हमें वो रिटर्न करा है लिटरली. तो आप मेरे हिसाब से अगर मैं कुछ करना चाहूँ, मैं तो यही चाहती हूँ कि मीडिया में भी हम हर तरीके की बात डिस्कस करते हैं, हर तरीके की डिबेट्स होती हैं, सब हो रहा है, लेकिन अभी भी हम लोग नहीं समझ रहे हैं कि नेचर को इतना ज्यादा डिस्ट्रॉय करने के क्या कंसिक्वेंसेस होंगे. आप इतने सारे पेड़ काटते हो. मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि कोई भी कंस्ट्रक्शन होती है या कुछ भी होता है, तो हमारी कंट्री की डेवलपमेंट का बोलकर वहां पे कुछ बना दिया जाता है. वहां पे इतने साल पुराने ट्रीज काटे जाते हैं और वहां छोटे छोटे सैपलिंग्स लगा दिए जाते हैं जो कि शायद गुलाब के हैं, which makes no sense to be honest, because you're cutting a plant which is कितने साल पुराना पेड़, बड़ा पेड़ आप काट रहे हो, फिर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ग्राउंड वाटर लेवल मेंटेन रहे. दैट इज सिली. आपका ग्राउंड वाटर लेवल मेंटेन नहीं रहेगा. वही बात है ना यार, कि अगर हम नेचर की को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आने वाले टाइम में हमारा जो we'll have a healthy living. And like I said, आप कुछ भी नहीं कर सकते अगर आप अच्छी हवा नहीं ले रहे हो, अच्छा खाना नहीं खा रहे हो, अगर आप नेचर को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो. सो इफ आई हैड मैजिक स्टिक, तो मैं सबसे पहले नेचर पर ही काम करती और मैं सबसे पहले पोल्यूशन पे काम करती, क्योंकि
न्यूबॉर्न बेबी, अगर मैं आपको बताऊं, न्यूबॉर्न बेबी इज बोर्न विद अ डिफेक्ट व्हेन दैट बेबी इज ब्रीथिंग सो मच pollutants. A pregnant lady is suffering so much. She's actually choked. आपका जो neck है वो choked है. अभी मैंने कहीं पढ़ा कि NCR जो है वो choked जोन जो है उसकी कोई डेफिनेशन बनाई गई. वो सब ठीक है, लेकिन क्या हम ये समझ रहे हैं कि क्या consequences होने वाले हैं? मेंटल हेल्थ, अब क्योंकि मैं एनवायरनमेंट के बारे में बात कर रही हूँ तो आई विल डेफिनेटली टॉक. आपकी मेंटल हेल्थ आपके एनवायरनमेंट से ही रिलेटेड है. अगर हम देखें, समझें इस बात को, समझने वाली बात है कि अगर आप ग्रीन्स में नहीं रह रहे हो, अगर आपके पास एंजाइटी लेवल इंक्रीज हो जाता है जब पोल्यूशन जो है वो ज्यादा है. ये दिस इज अ रिसर्च that your anxiety level is going to increase because anyways you're suffering so much, internally your body is suffering so much. आप अगर एक ऐसे एनवायरनमेंट में ही नहीं हो जहाँ पे ग्रीन्स है. आप मुझे एक बात बताओ ना, these days so many WhatsApp messages are forwarded, ठीक है? आप you take any cereal, you take any vegetable, ठीक है? They are literally saying कि हर vegetable और हर चीज में artificial colors है, सब कुछ है. कोई ये नहीं सोच रहा कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि नेचर को तो हमने प्रायोरिटाइज करना बंद ही कर दिया है. जब आप कोई अच्छी चीज कंज्यूम नहीं कर रहे हो, जब आप एक अच्छे एनवायरनमेंट में नहीं रह रहे हो, जब आपकी एयर क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो आपकी मेंटल हेल्थ कैसे अच्छी हो सकती है, राइट? और उसके ऊपर से पहले तो पीपल यूज टू वॉक ऑल्सो अलॉट. पोल्यूशन के लिए अभी भी बोला जाता है कि आप छोटे से डिस्टेंस के लिए आजकल आप स्कूटी लेके जा रहे हो, गाड़ी लेके जा रहे हो, मत लेके जाओ, साइकिल पे जाओ. हम लोग ये नहीं समझते थे that is also keeping us fit and that is also helping the environment. So what I'm trying to say is that if we're not growing up in a healthy environment, we cannot expect our mental health to be stable. We cannot expect कि हम mentally consequences face नहीं करेंगे. एक तो वैसे हम ऐसे era में we are in a at a place where मोबाइल पे ही सब कुछ है, इंटरनेट पे ही, सोशल मीडिया पे ही सब कुछ है. एक रीजन कि हम एंशियस इतने ज्यादा होते हैं क्योंकि उसने हमारा टाइम इतना कंज्यूम कर लिया है. हमने डिटॉक्स तो होना छोड़ ही दिया है, डिजिटल लीव वगैरह तो हमने छोड़ ही दिया है. ऊपर से हम जैसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, मैं बहुत ही प्रैक्टिकली आपको बता रही हूँ कि जैसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, हमें कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार रहना चाहिए. अगर हम आज के टाइम में नहीं रिस्पेक्ट कर रहे और नहीं समझ रहे, अभी भी आई सी पीपल डूइंग सो मच इंटरनेशनली. क्लाइमेट चेंज पे अभी भी बहुत कुछ हो रहा है. मीडिया जो है वो भी बहुत कुछ कर सकता है, ऐसा नहीं है. मीडिया के पास अपनी खुद की बहुत पावर है. इफ दे ट्राई टू एक्सप्लेन पीपल दैट हाउ इम्पोर्टेंट क्लाइमेट चेंज इज, इफ दे टेक अ फ्यू डोनेशंस एंड स्टार्ट प्लांटिंग ट्रीज, हर इंसान अपने इंडिविजुअल लेवल पे भी करने लग जाए तो बहुत फर्क पड़ेगा. सो यस, क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट एंड मेंटल हेल्थ इज कोरिलेटेड. तो वही है समझने वाली चीज. Absolutely. What a point of view, ma'am. Moving on to the last and the very question. Any message you would like to give to our audience watching us? Message, I would just say some poetry of mine that is related to mental health, and that's how we'll end it. So, perfection के पीछे हम सब भाग रहे हैं. Everybody is running after perfection. So I wrote a few lines on perfection. I redefined perfection with my poetry. So it's like, in this world full of competition, why are you, my dear, seeking perfection? You scream, you cry, you stress yourself. This harm is taking all your affection. Stop blaming others and claiming your mistakes. Learn to accept your imperfections. Please understand one thing, my dear. Always have good intentions. Because any mistake done by the doer, if surrendered, can be redefined. Striving for perfection is nothing but just a waste of time. Wow, amazing. Truly wonderful. Thank you so much for being with us, ma'am. It is an honor for us to have you, and wish you success for your future endeavors. Thank you so much. Thank you.